Yes. Hi, So, very good evening, Sagar sir. good Glad to evening. have you here. Thank you. I'm so proud to be here. And yeah, please go ahead. What question you have for me? Yeah, sure. So, my question would be that what's that one thing that could convert leads into customers? Okay, the thing is, first is I have to build trust by giving value in consistency. It is not like just one time game. You have to giving value to your audience consistency, and that is what uh, given me the best result. And yeah, that's how I got it. How would you nurture your community? Like, what is the main thing that you always take care while going live and while nurturing your community? Make sure that I always address their burning problem. Okay, and when I see that these people are facing this kind of problem, I keep eye on that. And as an entrepreneur, we have to be a problem solver, not just a money maker, right? The more bigger problem we can solve, the bigger money we can make, right? So I always talk about what are the current challenges they're facing. Whenever they join my group, I say, "Oh, what is the one challenge you are facing?" So that is like I keep eye on the problem and they keep trying to solve that problem. So that is the one biggest thing that people love my content. Even I'm not that uh, good. I have a good communication skill. I am super expert in speaking, but people know the intentions behind my content. So that is the best thing that people love my content and they try to. So they definitely buy from me. Yeah. Awesome, great, really powerful message. You said ki always you're looking for solving problems, and this is the main thing because people sense the profit focused approach, and also they are very much keen to sense the mission focused approach as well. So if you are there to help, then they would be ready to take the help as well. So it's Exactly. really very awesome. What is this Yeah, show all about? I'm thinking to start it like Shubh Vardhan, like it's a 1 minute show. Why don't you like do it such a long? Because when I what I see, I get my best customer from this log. Many people say this is a Yeah. short-term journey. Siddharth always talk about the people who are engaged with for such a long period of time. They are your real buyers. They are your Hmm. real fan. We don't need like thousands of followers. Okay, we are not fall like we're freedom-focused entrepreneur, not fame-focused entrepreneurs. Fame-focused, they just run behind followers, right? Yes. We are a freedom focus. Even if we have a five people, they are listening for a 1 hour podcast, they are going to buy definitely because they have a patience. They are completely like aligned with our vision. So they are staying till the end. And those people are real buyers. Yes. Yeah. Because Absolutely. so I in reels what happens, it's like a few seconds. So there is like entertainment, but we have to edutainment them through a longer format. So do it 1 minute, that's perfectly fine, but that is for your short format content, but also do long format for content that is going to actually uh, get you real audience. Okay. Yeah. Yes. Yes, I'm looking forward to have long form content as well. But Yeah. now for as of now, just starting, I'm just looking at the in the shortest step that I can take. One question I would ask, like at this age where people are just watching movies, they wanted to do like spend time on mobile chit chat, but you what motivates you to like work on at this age? Because many people think okay 25 साल होगा जब ग्रेजुएशन खत्म होगा तब करेंगे, but what motivates you to like to get into this journey very early stage? All right. So my motivation is actually, the message that you cannot let the schooling system interfere in your education. This is quoted by Mark Twain, and it's very true as well that the economy is going to be skill focused economy. And Hmm. today what is happening with students and also the college and all graduated graduated students as well is
they are, they are becoming intellectual bankrupts. They are becoming intellectual bankrupts. They have the intelligence, but with those certifications as well, they are not able to build that, build that stable business or job or anything. Okay, so the problem here is they are too much dependent on the education that they have got. So I would say that education is life, is whole education. Okay, so it's not just the school format. What we learn in school is just the education part. So we have to keep on learning and learning and implementing what we have learned. So this is what motivates me actually. My father has also told me that each and every time just keep on observing life, have a perspective of seeing life in like not just see it as life, but see it as how you are living it. All right. So I'm not just thinking about life. I'm only, I am also thinking about that how I am living it. Okay, so the best possible way that I can live my life. All the time productivity is also not good. So I have some moments for chilling and watching movies as well. But most of the time is productive time. So it's like it's on me that how much I can, how much I can use the best, make the best out of it. So I am on that. So this is what makes me, motivates me to do something, make some content and post it so that others can get help. And this is not a great job. Anyone can do it. All right. Anyone, if he or she focuses on how they can make the best out of their life, they will do it. So it's not a what's big your deal. name? What's your name? I forgot to ask. What's your name? My name is Vardhan Sahu. Vardhan. So Vardhan, it is great that you got that environment. First, kudos to your father. He has given you that space to grow yourself, and that is the blessings you got. So first, thanks to your father, Navinji. Yes. And because Siddharth always say like your environment is stronger than your willpower. Something you might do any other thing, but you got that environment that you are spending the right time with the right person. And yeah, that is awesome things I you are am doing. always, most of the gratitude is for my father. If not he, then I am like, I was never be able to, interview you or do and make and create any content or anything on the social media or on the camera. It's like impossible for me. All right, so the first and foremost gratitude and all the thank and gratefulness goes to my father, and he is the only one, Where is my he? greatest and biggest inspiration. Where is he right now? He is there in front of me, just in front of me. Just Shall I bring call it. him? Yes. I wanted Yes, to see. Yeah. Papa. Hi. Good evening. Namaste. Wow. Super. Like you both are like rocking this. Like you have everything. As I mentioned that call, you guys have everything that you just need to work on the traffic part. You have everything: system, branding, knowledge, communication. Those are the like so everything. I cannot like say like you have everything. Just you need to work on that. And really like at this age, you are teaching. Even I also like tired of teaching my younger brother and sister that do that. Like they are just chilling, but still in this era you are able to keep your family together with that same vision, and that is really kudos to you. एक्चुअल में हुआ क्या ना, बेसिकली हुआ क्या, जब मैं अपने शॉप पे बैठ के दुकानदारी किया करता था ना, मैं तो कारपोरेट में काम करता था, एक फेज था, उसके बाद मैंने जब कारपोरेट से बाहर निकल गया ना, देयर इज सम स्टोरी बिहाइंड, तो मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हुआ था, तो उस मिसहैपनिंग के बाद जब मैं रिकवर होने के बाद जब मुझे लगा कि इमीडिएट मुझे 40-50,000 रुपीज चाहिए जो मुझे सर्वाइवल के लिए चाहिए, उस सिलसिले में मैं आगे निकला, है ना। जब आगे निकला, जब दुकान में बैठा करता, तो दुकानदारी एक ऐसा चीज है ना, जब 24 घंटे ग्राहक नहीं होता है, और खास करके उस वक्त तो जरूर होता है कि जब आप एक नया दुकान चालू कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब वहां बैठ के मैंने देखा, रियलाइज किया, तो मैंने नोटिस किया कि यार मैं क्या कमा रहा हूं यहाँ पे पैसे, और मैंने अपने बच्चों, जो मेरा कल का भविष्य, नॉट ओनली मेरा भविष्य बल्कि मेरे पूरे भारत देश का, पूरी धरती माता का भविष्य, जो वहां पर और भी लोग हैं,
उसके बारे में कौन सोच रहा होगा? मेरे को वहां पर ये अचानक से एक स्ट्राइक हुआ है ना कि यार नहीं, ये जो मेरे बच्चे जाके स्कूल में या ट्यूशन में या फिर कोचिंग में जो भी ग्रैब कर रहे हैं, वो जो टीचर है उनका इंटेलेक्चुअल कहाँ से आ रहा है? उनको क्या बस कॉपी पेस्ट करने का धंधा मिला हुआ है क्या, कि वो बस अपने जो बुक्स सिलेबस है वो उसको अपने बैठ के लैपटॉप में या फिर ऑफिस स्टाफ रूम में देखेंगे और फिर आकर के यहाँ पर क्लासरूम में बता के जाएंगे? तो वो तो यार जरूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे तो उससे ज्यादा मैंने उनको कैपेबल कर दिया है कि वो कोई भी बुक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मुझे वहां पे स्ट्राइक हुआ कि नहीं, मैं कुछ बहुत जबरदस्त चीज लॉस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार सुन रहा था कि कुछ कोरोना काल से पहले मैं देख रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है सोसाइटी के अंदर में, कोई ना कोई डिस्प्यूट चलते रहता है हर वक्त। एग्जैक्टली बात को लेके कभी सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब मुझे एक ऐसा चीज लगने लगा था कि अब जो वायरस का वार होगा, चाहे तो सिस्टम को लैप कर जाएगा, चाहे तो कोई बैंक को गैप कर लिया जाएगा, मतलब हैक कर लिया जाएगा। आपको पता होगा कोई बंदा 51 सेकंड के लिए पूरा गूगल हैक कर लिया था, 3.5 करोड़ के पैकेज उसको गूगल वाले ने बुलाया। बिहार का कोई बंदा है, ठीक है ना, रजत या क्या नाम है ना। तो 51 सेकंड के लिए गूगल को हैक कर लेना बहुत बड़ा बात है, वो भी इंडियंस के अंदर में खासियत क्या है मैं बता दूं, क्यों भारत विश्व गुरु के नाम पे चला जाता है, जाना जाता है, क्योंकि हमारे मिट्टी में, हमारे जिम में ना एक क्वालिटी है जिसका नाम हम बोलते हैं कि बाल का खाल निकालना, ठीक है ना। तो ये बाल का खाल निकालने वाली जो कला है ना, वो इंडियंस में बहुत जबरदस्त है। और ये जब किसी इंडस्ट्री में जब इसको इनपुट होता है ना, किसी इंडस्ट्री को, किसी चीज को जब गहरा नजर से देखा जाता है, तभी बाल का खाला निकाला जा सकता है ना। यानी वो जो आप जो माइक्रोस्कोप से करते हो, जो आप जो पैथोलॉजिशियन के ग्लास के बाद जो चीज ऑब्जर्व करते हो ना, वो तो इंडियंस के खून में है। इसीलिए तो जितने भी बड़े बड़े संस्था, इवन आज जो भारत का खून है ना, वो अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में बैठा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो आपको समझना होगा, चाहे गूगल की बात कर लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, चाहे और भी ऐसे बहुत सारे नाम है जो आप उंगलियों पे गिनोगे तो उंगली कम पड़ जाएंगे, नाम ज्यादा निकल के सामने आएगा। जो पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है, वो कंसर्न, उसका हेड कौन है? तो इंडियन, ठीक है ना। exactly. ये मेन बात है। तो मैं बोला यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये पैसे जो मैं कमा रहा हूँ इसका कोई अर्थ नहीं है। मुझे बोला था कि आपके पास जो है ना, मतलब पैसा नहीं कमाना है आपको, आपको वैल्यू कमाना है। आपका वैल्यू बढ़ेगा तो पैसा हर वक्त बाय प्रोडक्ट था वो आएगा। मुझे कोई सामान बेचने की जरूरत नहीं, मैं सामान बेच के अपना सर्वाइवल निकालूं, ये तो मेरा हुनर था ही नहीं। क्योंकि मैं जब से शादी हुआ, जब से मैं अपने आपको लगा कि नहीं, मुझे अपने परिवार से, अपने पैटर्नल जो इन्वायरमेंट है उससे निकल के कुछ इंडिपेंडेंट करना चाहिए, तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि ये पेन जो मेरे पॉकेट में रहता है, वो पेन हर वक्त रहेगा और मैं इस पेन की ताकत से आगे बढ़ूंगा। इसी वजह से मैं कारपोरेट में काम कर पाया। 12 साल जैसे मैंने कारपोरेट में काम किया, और इस 12-14 साल के अंदर में जो मैंने ऑब्जर्व किया कारपोरेट कल्चर को, तो मेरे को बहुत कुछ समझ में आया कि यार हम काम करते हैं और प्रमोशन ऊपर वालों का होता है। तो वो बात जब समझ में आ गया कि नहीं, जितना एफर्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, जो मुझे चंद पैसे इंसेंटिव के रूप में, चंद जो इंक्रीमेंट है वो प्रमोशन के रूप में मिल रहा है, ये तो मेरा एक बोलते हैं ना कि जब कोई कुत्ता या बकरी बीमार हो जाता है ना, तो वो गोल गोल घूमना शुरू करता है। ये लगभग वो बीमार जानवर वाला हाल हो गया है कि हम किसी एक चीज के गोल गोल घूम रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं कहीं ना कहीं, मुझे अंदर में तो था ही वो, लेकिन क्योंकि बच्चे थे, एक आदमी जब जॉब करता रहता है ना, तो उस माइंडसेट में आ जाता है। तो जब मैंने जॉब से बाहर आ गया, तो मेरे को फिर वो एकदम क्लियर कट हो गया कि नहीं, मैं कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर तो कर रहा था। क्योंकि जॉब में एक सधे हुए पैसे हैं और आपका एक मन में लालच तो रहता है ये कि ये पैसा फिर कहां से अचानक से निकालूंगा। और उतना ज्यादा बुद्धिजीवी इंसान तो था नहीं मैं कि इतना हिम्मत दिखा सकूं कि वो जो बंधे हुए पैसे आ रहे हैं, जिससे मेरा घर परिवार पोषित हो रहा है, मैं उसको तुरंत ब्रेक करूं और फिर कहीं और स्विच कर जाऊं। वो तो मिस हैपनिंग होना था, मिस हैपनिंग हो गया लाइफ में, तो एक ब्रेक लग गया, ठीक है ना। उसके बाद जब मैं रिवैम्प किया अपने आप को, जब मैं देखा कि यार एक समय था, मैं बचपन से ही कुछ प्रोडक्ट बेचता और खरीदता और उसको प्रॉफिट बनाता आया था। बचपन से वो इन्वायरमेंट रहा, हम लोग बनिया के बच्चे हैं, तो कुछ खरीदना बेचना, सीजनल गुड्स वगैरह तो चलता रहता था। बट जब मैं अपना ग्रेजुएशन करने के बाद शादी हुई, शादी के बाद जब मुझे मौका मिला, तो मैं कॉर्पोरेट कल्चर में घुस गया। और उसके बाद मल्टीपल ऑफ कंपनीज में काम करता चला गया, प्रमोशन मिला, सब कुछ जो था वो आ रहा था। तो एक आदमी का माइंडसेट था कि यार लाइफ तो स्ट्रिक्ट है, फिर क्या दिमाग लगाना। वहां पे तब तो जाम पड़ा हुआ था। जब वो मुझे मिस हैपनिंग हुआ, बोलते हैं ना कि संसार में जब कि आप बोला गया है कहावत बड़े बुजुर्ग के द्वारा कि यार कुछ भी होता है तो उसको तुम सीधे नजर से देखो। तो मिस हैपनिंग तो होना था, हो गया। अब मैं वापस से जब अपने दुनिया में लौटा, तब रियलाइज हुआ नहीं यार, कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक कर जा रहा था मैं, अब नहीं करूंगा।
मुझे तो बस हमेशा इस तरह से रहना ना कि मेरे पास जब यमराज भी आ जाए तो मैं बोलूं चल ले चल मुझे, मैंने अपना सारा काम कर लिया है, चल लगा मेरे चिता में आग, मैंने अपना सारा काम कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये बात तो बोल सकता हूँ, मेरा भगवान मुझे अगर ऊपर लेके जाना चाहता है तो ले जा, मैंने अपना सारा काम कर लिया है। क्योंकि मैं एक ऐसा नस्ल, एक ऐसा ब्रीड जो है ना इस पूरे सोसाइटी को दे के जा रहा हूँ, जो अभी कितने सारे अपने जैसे बच्चों को अलाइन कर देगा। नॉट ओनली बच्चे, किसी भी एज के मेरे बच्चों के सामने आएंगे ना वो, तो ऑटोमेटिकली उनका एनर्जी जो है ना बूस्ट हो जाएगा। ये बात आप किस Definitely. लेवल पे समझ सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है। Exactly. Even I get like fired up. Like definitely, I want to you like to connect with my sister also, because she wanted to do. She has a very good knowledge, but she is not able to understand what is the future of this. Again, the same concept like जो उन्होंने पढ़ाई दिया, जो स्कूल में पढ़ाया, जो ट्यूशन में पढ़ाया, बस that's it. So they don't know the beyond what is happening that outside world. So yeah, I am also charged up by looking at your family, complete families with one mission. Yeah. अभी कुछ देर पहले वरदान ने आपको बताते वक्त बताया भी था कि हमारे सोसाइटी का जो हाल है ना, आपको समझना होगा कि इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, बट बावजूद इसके पूरा हमारा इंडिया ना 60% यूथ का कंट्री है, बावजूद इसके वी आर नॉट स्टिल अ डेवलप्ड कंट्री। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? दैट्स द इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी। ये बहुत बड़ा बात हमने यहाँ पे खुलासा किया आपका कि इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का मतलब ही है ना कि सब कुछ है आपके पास, बट आपका पोजीशनिंग सही नहीं है। यू आर नॉट अलाइन विथ योर एक्यूरेसी। आप हल्दी हो, आप गुलाब के फूल हो, आप धनिया हो, आप गोल मिर्च हो, आप लाल मिर्च हो, आप बेसिकली तारबूज हो या आम हो या एप्पल हो या संतरा हो, बेसिकली आप कुछ तो हो, लेकिन यहाँ आपको पता ही नहीं है कि आप हो क्या चीज। जब आप अपने आप को पहचान जाओगे कि आप एक हल्दी हो, तभी तो आपको पता होगा ना कि मुझे अपना मार्केट में अपने आप, मैं गुलाब हूं तो मैं अपने आप डिमांड पे रहूंगा। यानी बी योरसेल्फ, वर्ल्ड विल एडजस्ट। बी योरसेल्फ, वर्ल्ड विल एडजस्ट। तो आप जो हो, हाँ, आप जो हो, अगर आप वहां पर रुक गए ना, तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली आपके ऑरा में आने लगेगी। आप खुद को जानते नहीं हो और यू आर मतलब बोलते ना इमिटेशन में लगे हुए हो, क्योंकि किसी ने कह दिया ना कि आपके पूर्वज बंदर थे, तो आपके पूंछ हट गए तो आप इंसान हो गए। किसी नॉनसेंस ने ये बात बोल दिया और आपके लिए बिलीफ सिस्टम में आ गया, तो आपको लगता है कि इमिटेशन करना तो हमारे अंदाजे बयां का बात है। हमारा तो फितरत ही यही है। फितरत में कुछ और था। फितरत में दो ही बात था कि फाइंड द फूड एंड डोंट बिकम द फूड ऑफ एनीवन। हमारे फितरत में यही बात थी, लेकिन ये फितरत में तीसरा बात किसी नॉनसेंस ने डाल दिया कि हमारे पूर्वज बंदर थे, उनके पूंछ थे, वो पूंछ हटा तो हम इंसान बन गए। ऐसा कभी नहीं था दोस्त, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि किसी ने कह दिया और वो काफी दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो हमारे माइंड पैटर्न में वो बात आ गया कि यार इमिटेशन करना तो हमारी फिलॉसफी है। और मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। ये जो लोग बताते हैं एनएलपी में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कोरी बकवास बात करते हैं। अरे ये तो हमारा नेचर है बॉस, ये तो हमारा नेचर है। नेचर क्या है कि हम जब कोई मैथ सॉल्व करते हैं तो लेट्स एज्यूम फार्मूला यूज करते हैं। अब लेट्स एज्यूम ही तो है सब कुछ यार। जब कोई भी मैथमेटिक्स सॉल्व किया और लेट्स एज्यूम x, लेट्स एज्यूम 100, लेट्स एज्यूम sin cos 10 का फार्मूला, ठीक है ना, इसी को तो एज्यूम करके हमारा टीचर हमें क्या, हम जहां फंसते थे टीचर बोलता था लेट्स एज्यूम दिस और प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। अभी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करते हो? आपको कोई जोशी तांत्रिक मंत्र, पढ़ा हुआ पानी, ठीक है ना, कोई गंदा तावीज, सारी बकवासें चल रही हैं, लेकिन लेट्स एज्यूम आप करते ही नहीं हो। लेट्स एज्यूम करने का मतलब ही है कि आप वो सारी चीज विजुअलाइज कर रहे हो या फिर उस चीज को उठा के ला रहे हो जो आपको चाहिए। यू आर एक्चुअली, आप बोलते हो ना मुझे ये चाहिए भगवान, मुझे वो दे दो, मेरे को भगवान ये दे दो। यानी आपने क्या किया? आप अपना कंगलापंथी यूनिवर्स को दे रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे भेजो, मेरे को जल्दी से अमीर बना दो, मेरे को जल्दी से ये दे दो, मेरे को। तो आप यूनिवर्स को मैसेज क्या दे रहे हो कि यू आर अ लैक। नहीं दोस्त, भगवान तो एकदम आपका राशन कार्ड और आपका बैंक बैलेंस का पासबुक जो है ना वो पहले दे के भेजा है। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो ना, तो टिफिन में वो सारी चीज डालते हो कि मेरा बच्चा किसी से इन्फीरियरिटी फील ना करे, वो किसी से झगड़ा ना करे। तो आप जब स्कूल भेजते हो 4 घंटे के लिए, बच्चे को 3 घंटे के लिए, तो आप आपके टिफिन बॉक्स का पूरा ख्याल रखते हो, यहाँ पर रुमाल डालते हो कि नाक पोंछ लेना, ठीक है ना। तो जब आप अपने बच्चे का इतना ख्याल रखते हो, तो पूरा संसार को बनाने वाला जो सृष्टि करता है, जो उसने कितना ख्याल किया होगा आपका। आपको पंचतत्व से बनाया, आपको
एकदम जो बोलते हैं ना ऑक्सीजन अवेलेबल कराया, आपको फूड अवेलेबल कराया। फूड क्या है? वही धरती, धरती से अनाज उपजता है और आप खाते हो। 2 किलो का वजन लेके आते हो, 80 किलो का वजन लेके जाते हो। वो फूड की वजह से है ना। जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा मोटा, जो कम खाता है वो कम मोटा पतला, ठीक है ना। सिंपल फिलॉसफी है। आप मरते हो तो क्या होता है, चाहे तो राख के रूप में, चाहे तो पूरी तरह से आप मट्टी में दफना दिए जाते हो। क्लियर है? एक साइकिल चल रहा है ट्राइंगल में, आप धरती अनाज, आप धरती अनाज, आप धरती। ये 3 ट्राइंगल में बात खत्म हो रही है। चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आपको पता होगा हमारे जो मैथमेटिशियन थे रामानुजन, उन्होंने आज से 125 साल पहले अपने डायरी में वो बात लिख छोड़ा था जो ब्लैक होल का रहस्य उजागर करता है। 2012 में एक जापानीज या चाइनीज मैथमेटिशियन ने उस पैराग्राफ को क्या किया, फिर से ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि ये ब्लैक होल का साइंस रिवील होता है। और 2012 के बाद से ब्लैक होल साइंटिस्ट के लिए थोड़ा इजी हो गया। जबकि ये बात 125 साल पहले रामानुजन ने अपने डायरी में पैराग्राफ में लिख लिया था। हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस है, हमारी मट्टी में वो बात है, हमारे जिन में वो बात है, बट हम लोग खुद की इज्जत नहीं कर रहे हैं। यू आर योर ओन ब्रांड। बट मेरी मजबूरी है कि मैं यू आर योर ओन ब्रांड यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मुझे मजबूरी में लिखना पड़ रहा है यू कैन ब्रांड। आप मेरी मजबूरी समझिए कि मुझे बोलना पड़ रहा है कि यू कैन ब्रांड, यू कैन हल्दी, यू कैन गुलाब फूल, यू कैन चंपा चमेली, यू कैन आम, यू कैन वाटरमेलन। मेरे को बताना पड़ रहा है क्योंकि आपके अंदर में वो लेवल ही नहीं है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओ कि यू आर योर ओन ब्रांड। आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि मैं वाटरमेलन हूँ, ठीक है ना। झोल वहां पर है, तो मेरी मजबूरी हो जाती है ये लिख पाना, है ना, कि यू आर योर ओन ब्रांड नहीं है, यू कैन ब्रांड। आप समझना पड़ेगा कि माथा जो है ना बहुत लगाना पड़ा। आज यहाँ पर हमने बहुत कुछ अलाइन किया है, बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी हर चीज को लोगों तक लाने के लिए। बट यार मैं तो देना चाहता हूँ, क्या आप लेना चाहते हो? बहुत बड़ा सवाल है। एग्जैक्टली दैट आई थिंक लोग पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो रखे हैं, इंटेलेक्चुअल बैंकक्रप्ट। वो 99 से 100 के पीछे भाग रहे हैं और वो कभी उनके हाथ नहीं लगेगा। वो उतने ही कर पाएंगे। होते ना सुख वरदान, मतलब वरदान तो सभी के पास है, भगवान ने तो उतना आपके लिए छोड़ ही दिया रास्ता कि यार जाओ ये 3 काम करना, तुम्हारा लाइफ तुमको पास मार्क मिल जाएगा। क्या? फूड ले आओ अपने लिए, शेल्टर ले आओ अपने लिए, क्लॉथिंग ले आओ अपने लिए, है ना, खाना कपड़ा मकान। ये 3 एग्जाम पासिंग परसेंटेज है आपका। बट चाहे तो आप अपने मोहल्ले का काउंसिलर खोजो, चाहे देश का नेता, चाहे तो कुछ भी, हर बार आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट को ही वोट देते हो। तो भगवान भी उसी की तलाश में है बॉस। आप कितने मांझ रहे हो खुद को, आप कितना परिश्रम कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो ना बॉस, यही काउंट होगा। और आपका इनपुट अगर गया है ना तो बॉस आपका लेवल इनहांस होगा, आपका ऑरा बढ़ेगा। और डिजर्विंग कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट हर वक्त था। भगवान भी देख रहा है कि कौन हकदार है, और जो हकदार होगा ना उसको उसका जगह उठा के दे दिया जाएगा। ले बेटा बैठ तू यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जैक्टली साहू सर कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया ना? नहीं, आप बहुत सही डीपली आपने मतलब बहुत कुछ स्टडी किया हुआ है एंड यू नो द रूट, दैट इज द थिंग। या बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड रियली लाइक यू आर लाइक व्हाट इज दिस स्टेज इज इन, लाइक आपके घर पे ही है ये जो आपका हमारा ये स्टूडियो हमारे घर पे ही है। बहुत सही, बहुत अच्छा लगा मतलब आपसे बात करके एंड रियली आई एम आल्सो इंस्पायर्ड by watching you. And she was also telling like she started implementing it, and the Facebook group, that is also keep focusing that for at least 30 to 60 days. Definitely you will see massive result coming to your group. Yeah, because that is something I studied a lot about organic marketing. It's been almost 2 years like happening in the next month. Literally sometimes I have to pay $200 just to learn these concepts, the thing, but I'm giving for free in the public market, because that point of time there was no one sharing this type of thing. They were asking money. I paid $200 just to get 2-hour call. 15,000 में देना पड़ा। Don't be cheap in the journey of greatness. यानी जो इन्वेस्टमेंट है ना, लोग कुछ सामान में लगाना चाहते हैं, कुछ गुड्स में लगा करके कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वो भूल जा रहे हैं कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट खुद पे कर दूं तो मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा। मेरा वैल्यू जब वेटेज हो जाएगा ना, जब मेरा वेटेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा इनपुट बढ़ेगा। लोग ये बात लैग कर जा रहे हैं कि जब मेरा इनपुट बढ़ेगा तो मेरा वैल्यू बढ़ेगा, तभी इनपुट बढ़ेगा। बातें हर वक्त थी, बातें हर वक्त रहेंगी। क ख ग घ ABCD से ही बातें स्थापित होनी है। यहाँ पर जो सर्किट बोर्ड है ना,
ये सर्किट बोर्ड ही आपके अंदर शब्द पैदा करेगा और ये शब्द ही वाक्य में प्रेरित होगा, ठीक है ना। क ख ग घ एबीसीडी से आगे पढ़ाई नहीं है, उसके बाद नॉलेज है। जो विजडम है ना वो क ख ग घ एबीसीडी है। जो समझना है, जो जानना है, वो भाषा ही है, वो बोध ही है, जिससे आपको कंसिस्ट करना है बातों को, है ना। तो वो, लेकिन यहाँ पर जो सर्किट बोर्ड है ना, वो आपका औकात बताता है, आपका सराउंडिंग बताता है, आपका ब्रॉटअप का जो बोलते हैं ना सराउंडेड, आप जिस तरह से हो, तो आप जिस तरह से सराउंडेड हो ना, आपका सर्किट बोर्ड उस तरह से प्रोग्राम्ड हो गया है। अब उस प्रोग्रामिंग के अंदर में अगर आपको पता चल गया है कि मैं जिस तरह से प्रोग्राम्ड हूं वो विंडोज 98 है, अगर विंडोज 98 है तो विंडोज 10 की तरह वो कैसे परफॉर्म करेगा? एग्जैक्टली ठीक है ना। तो इवन विंडोज 10, हाँ विंडोज 10 यहाँ अपलोड हो गया तो वही सेम क ख ग घ एबीसीडी, उसका परफॉर्मेंस का लेवल चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली ना। तो हम इसको अपनी भाषा में बोलते हैं कि यार भरना नहीं है, मतलब भरना जो है ना, भरना, अगर आप भरने में ध्यान दोगे तो छलकना नियति हो जाएगी। जब आप भरोगे तो छलकना नियति हो जाएगी। तो आप भरो ना, पहले आपको जो भरना है अपने अंदर उसके लिए आप इंटरेस्टेड रहो, क्योंकि पैशन बदलता रहेगा लेकिन इंटरेस्ट जो है ना वो आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो मीठा पसंद नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 40 साल के बाद मीठा खाना पसंद करोगे। अगर मीठा से हट है तो हट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एरिया अगर है तो फिर उसमें आप भरना शुरू करो, क्योंकि जब भरोगे ना तो छलकना नियति हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप फ्लो करोगे और लोग जो है ना आपके साथ जुड़ेंगे एज ए फैन, सपोर्टर, मुरीद, है ना। तो आपके वो कली मतलब मुरीद हो जाएंगे, आपके सपोर्टर हो जाएंगे, है ना, आपके अनुयायी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। अहम ब्रह्मास्मि बोल तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन कभी इसका मतलब नहीं जाने कि अहम ब्रह्मास्मि कैसे हैं। आप अपने आप में कल्प वृक्ष हो, आपकी सारी मुरादें आपसे ही पूरी होनी है। बट इन सब बातों को छोड़ के हम लोग बस बकवास वाली बातें में फंसे हुए हैं, और इसमें भी हम लोग का हाथ कम है। हम लोग क्योंकि गुलाम हुए, क्योंकि हमारे अंदर सादगी थी, हमारे अंदर सहनशीलता थी, हमारे अंदर लोगों को झेलने या बर्दाश्त करने की क्षमता थी ना, दैट्स वाई जो दूसरे लोग आए हम उनका रिगार्ड किए, क्योंकि हम अपने पॉलिसी से बंधे हुए थे। हमारे पास जो दूसरों का रिगार्ड करने का जो स्वभाव है ना, वो बहुत रामराज से आ रहा है ना, बहुत पुरातन है कि लोगों का रिगार्ड करते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनको हम अपना मान के अपने घर में जगह देते हैं। लोग इसका मिसयूज कर गए। जब लोग इसका मिसयूज कर गए ना, तब हमको वो अपनी मर्जी का गुलाम बनाने लगे। हमारे यहाँ मुर्गा बांग मारने से सुबह होता है, लोग अपने आप अपने काम में चले जाते हैं, है ना। बट हमें घंटी का आदत लगा दिया गया। हमारी पढ़ाई के पीछे एक ही लॉजिक है कि एक अच्छा जॉब करना है। किसी से भी पूछ लो, भाई पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ जॉब वॉब मिल जाए, अच्छी कंपनी में लग जाए काम, है ना। आपकी भी बेटी की या बहन की शादी करनी है ना, तो आपका प्रेफरेंस होगा कि अगर उसको कोई सरकारी जॉब मिल गया या फिर कोई भी जॉब करता है, कहीं सेटल है, तो बहुत अच्छा है। आपके दिमाग में पहला वही है कि यार जो डाउरी देना पड़ा देंगे, जो दान दहेज का करना होगा बात करेंगे, बट यार लड़का कहीं सेटल मिल जाए। सेटल मतलब कहीं ना कहीं कोई कंपनी में, अगर इंजीनियर है तो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी का हो, ठीक है ना। तो दिमाग में ये पहले से फिक्स है कि यार एक बेटर वर्जन बोलने से कोई जॉब वाला बंदा, ये एक झोल है जो माथे में आपका सेट हो गया। वो तो माइंडसेट पूरा वो पहले से ही, वो सब कुछ अभी भी मुझे ही बोला जाता है कि तुम कुछ जॉब क्यों नहीं करा, ये सब क्या कर रहा है, मतलब दैट इज द थिंग, इज प्रेशर इज कमिंग। एंड उनको भी बोला कि हम बाकी जाके जब तेरे लिए देखने जाएंगे तो क्या करेंगे, तो वो सब चिंता उनके लिए है ना। तो वो सब टेंशन है। तो दैट इज द थिंग, वो पूरा वो अभी मैं जो कर भी रहा हूँ उनको पता भी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, वो बोल भी नहीं पा रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो दैट इज द थिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, द ओनली थिंग्स टाइम विल डेफिनेटली चेंज। जो टाइम आएगा ना, आप आज हम कोचिंग वगैरह में बात करते रहते हैं, 5 साल के बाद घर घर में बात होगी, डेफिनेटली होगी इस चीज ना। अभी जैसे इंजीनियर और डॉक्टर सभी बात करते हैं ना, वो चीज होंगी डेफिनेटली 3-4-5 साल के बाद। हर घर में कोचेस निकलेंगे, हर घर में ऐसे मार्केटर निकलेंगे। तब बात है भाई 5 साल पहले जो उसने स्टार्ट किया था ना, वो लकी है, बट वो लकी अभी नहीं बनना चाहते कोई ना। दैट इज द मैं थिंग। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपका विजन के बारे में, कि अगर आप ये काम कर रहे हो, ठीक है ना, ऑनलाइन कोचिंग का काम कर रहे हो, मुझे आप बताओ कि आपका कितना गहरा नजर है। आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह अगर इसे देखते हो तो आपका स्केलिंग का क्या स्कोप है इसमें, वो बताओ। स्केल करना आप समझते हो ना? हाँ। आप ग्रोथ तो ले सकते हो, मुझे पता है कि एक स्टैंड तक आपका ग्रोथ तो हो सकता है, बट मैं जब बात करता हूं आपसे स्केल करने की, तब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, आप मुझे इसका भरपूर जवाब दें
कि इस धंधे में, इस कोचिंग इंडस्ट्री में आने के बाद वर्क फ्रॉम होम करने से आपका स्केल क्या है, कहां तक जा सकते हैं। मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास आज 10 लाख रुपया है तो मैं बोलता हूं कि ये 100 करोड़ रुपया कैसे होगा विद इन अ सर्टेन पीरियड, स्केल करने की बात करता हूं। तो आप मुझे प्लीज, अगर आपके पास इसका कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास आज 10 लाख रुपया है तो कितने दिनों में ये 100 करोड़ रुपया हो जाएगा। 100 करोड़ तक मैं तो अभी तक वहां पे मैं तक अभी आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर, दैट इज द समथिंग गोल आई हैव गेन। एंटरप्रेन्योर सेल्स में जब आप आ जाते हो ना तो फिर यार इमोशनल काम नहीं करता है, इमोशन काम नहीं करता है। हमें देखना है कि हाउ विल मेक प्रॉफिट। तो मेरे पास जो क्लैरिटी है, मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे थोड़ा गाइड करें, क्योंकि अभी हम लोग मनी मेकिंग में नहीं आए हैं, आप ऑलरेडी मनी मेकिंग कर रहे हो, है ना। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो मनी मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपने क्या देखा है तो उसका क्या लेवल है। अभी मान लो सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया कि अभी आप 10 लाख रुपए ग्रोथ में हो, मुझे बताओ कि आपको अगर एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ रहना है तो जाहिर बात है एंटरप्रेन्योर एक ही बात सोचता है, वो प्रॉफिट की बात सोचता है, अपने आप को स्केल कराने की बात सोचता है। जब तक आप स्केल करोगे नहीं तब तक आप लेवरेज करोगे नहीं। लेवरेज स्केल का नेक्स्ट पार्ट है लेवरेज करना। तो लेवरेज तो बहुत दूर की बात है, हम सिर्फ स्केल की बात करते हैं। हालांकि 5 स्टेज जो आप जानते हो, सबसे पहले होता है सर्वाइवल, स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल के बाद सर्वाइवल, सर्वाइवल के बाद आपका हो गया एस्टेब्लिश, है ना, फिर होता है सक्सेस, फिर होता है स्केल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंडस्ट्री में जहां पर आप हो, एक कोचिंग कर रहे हो, प्रॉफिटेबल हो आप अपने काम के अंदर, लेकिन आप अपने आप को कब देख रहे हो एस्टेब्लिश होते हुए, कब देख रहे हो स्केल होते हुए? ओके, तो थिंग इज माय विजन इज आई जस्ट नो कि अगर मैं खुद सिस्टम में स्टक हो जाऊं देन दिस इज नॉट अ स्केलेबल, आई हैव टू बी फ्री। ओके, so free that so I have to like create a definitely education organization, है ना, जहाँ पे like there is a two way scale will happen. One is definitely maximum student will come and learn, and maximum deliverability I should create that capabilities, like more trainers, more coaches, right? This type of thing I'm thinking in the long term, right? Not now, but definitely after 3 4 5 years I wanted to like scale this business into like biggest education system that actually not teach only this जो जैसे कि अभी सब लोग पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये जो स्कूलिंग सिस्टम है पूरा खत्म ही हो जाए। पीपल शुड नॉट थिंक ओके भाई 10 क्लास पास होना है तभी जाके मैं कुछ कर पाऊंगा, वो सर्टिफिकेट दिखा के। वो सर्टिफिकेट वाला सिस्टम, मैंने एमबीए किया हुआ है, आज तक मैं उस एमबीए को लास्ट 3 साल से मैं उस एमबीए का सर्टिफिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ कहाँ पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं, क्योंकि वो मुझे पता है कि उसका कोई 1% भी वैल्यू नहीं है। वो कब समझ में आया, जब ये कोरोना हुआ, मुझे रियलाइजेशन हुआ ये क्या हो रहा है ये सब चीज, है ना, तब मेरा दिमाग खुला। तब मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे कुछ एजुकेशन सिस्टम मुझे क्रिएट करना है मार्केट के अंदर, ताकि वो एक रिवोल्यूशन लाए। लोग सिर्फ नहीं है कि 10th क्लास तक पढ़ते रहे वही चीज, मैथमेटिक्स, साइंस, रादर दे शुड प्लान फ्रॉम लाइक एज नंबर 5 ऑल्सो, ना। उनको बेसिक से क्या चाहिए, मतलब आज तक ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन मैंने कहीं पे देखा नहीं, बट मैंने ट्रिगोनोमेट्री कितना मेहनत किया हुआ था, राइट, मार खाया छड़ी, तो उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो उस चीज का वैल्यू क्या है, जितना बेसिक चीज वो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन है उनको मैं स्कूल ही नहीं भेजूंगा। दिस इज माई माइंड सेट राइट नाउ। आई वांट टू टीच देम लाइक उनको 15 साल नहीं वहां पे स्पेंड करना है, राइट। They can learn from home also, they can learn from like meeting with different traveling, so many things. So that type of education is something I have a like bigger vision on that. And yeah, scaling एक ही तरीके से हो सकता है कि I am removing from the system. I wanted personal brand is okay to start off this business, है ना, अभी personal brand build कर रहा हूँ, but end of the day I have to create that organization, that system even after my life that run into autopilot and that create a massive revolution in the education industry. वो education में मुझे बहुत बड़ा revolution आना, that is my goal in the longer run. Yeah. हम लोग देखिए एकदम सिंपल सा समझ के एक बात, बहुत क्लियर कट मैसेज है हमारे पास कि अगर आपकी पोजीशनिंग आपको समझ में आ गई, who you are and आपकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, अगर आपने इस चीज को क्लियर कर लिया तो फिर मार्केट में कुछ नहीं बचा जो आपको करने का जरूरत है। हर चीज अपने आप आपको उठा के ले जाएगी। मतलब एक बार आपको पता चल गया कि आप गुलाब के फूल हो, मतलब गुलाब का फूल मार्केट हैज देयर ओन कैपेसिटी एंड ओन डिमांड।
अगर आपको पता चल गया कि आप एक हेल्दी हो तो आपका एक अपना मार्केट है बॉस। बट आपको पता होना चाहिए कि आप एक हेल्दी हो, ठीक है ना। अगर आप एक हेल्दी हो तो फिर आपसे कलर पीला ही निकलेगा। अगर आप गुलाब हो तो आपसे खुशबू आएगी, और बाय डिफॉल्ट वो खुशबू कोई इत्र से नहीं आएगी, वो जड़ में गोबरी और खाद ही लगा होगा। एग्जैक्टली। हल्दी है तो कोई हल्दी जैसा चीज उसके अंदर में नहीं गया होगा, उसके अंदर भी गोबर और खाद ही गया होगा। यानी जो इंजेक्ट हुआ है ना इनिशियली, जो आपको पोषित किया है, वो कुछ सड़ा हुआ चीज ही है, बदबूदार चीज है। वो बदबूदार आपके साथ कितना है, अगर वो है तब फिर आपकी क्वालिटी आपको निकल के आएगी सामने। तो वो आप इत्र या परफ्यूम से नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लोग इसी चीज में लगे हैं कि उनको हल्दी है ना तो वो हल्दी हल्दी कर रहे हैं। अगर वो अमीर होना चाहते तो अमीर अमीर कर रहे हैं। और ये बकवास जो एनएलपी वालों ने और इस तरह के जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों ने, थिंक एंड ग्रो रिच वालों ने ये झमेला कर रखा है कि यार तुमको जो चाहिए ना तुम बोलो, यूनिवर्स को बोलो, मैसेज जाएगा। मुझे इतना बकवास लगता है ना कि मैं क्या बोलूंगा। अरे यार तुम गुलाब के फूल हो, तुम गुलाब के फूल कर रहे हो। गुलाब के फूल करने से गुलाब फूल तुम कैसे हो सकते हो यार। तुम बोलते हो मेरे पास कार हो जाए, मैं दीवार में पिक्चर लगा दिया, मेरे को कार ये चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, आपने पिक्चर लगा दी, मुझे यॉट चाहिए। क्या मजाक चल रहा है यार, क्या बकवास चल रहा है। आपको क्या चाहिए? अरे तो चाहिए ठीक है, लेकिन कैसे मिलेगा उस पे काम करोगे ना यार। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। अरे पॉजिटिव किस चीज के लिए? पॉजिटिव उस चीज के लिए जो आपको देगा स्ट्रेंथ। आप उस चीज के लिए पॉजिटिविटी नहीं रखे हो। मार्केट में रास्ता है, रास्ते में गड्ढा है, तो गड्ढा है उसके लिए पॉजिटिव रहो कि रास्ते में गड्ढा है। गड्ढा को तुम चल जा रहे हो, उछल के चल जा रहे हो, नहीं नहीं चोट लग गया, नहीं नहीं चोट नहीं लगा, डरो मत डरो मत, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अरे चोट लग रहा है यार, बी पॉजिटिव, क्या बात कर रहे हो। The main thing is that people are not thinking of, people are mostly thinking about the outcome, the car and all the things, but they are not thinking about what can get that thing. मतलब जैसे अगर हमें flowers उगाने तो हम roots में perfume तो नहीं डाल सकते, roots में हमें वही सड़ान, वही humidity, वही खाद and all डालना पड़ेगा। So that is the point of purpose। तो इसीलिए हमारा नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस जो है ना, ये इस चीज के लिए सपोर्ट करता है सर। आप जो है ना संसार का कोई भी काम करो, हमें कोई वादा नहीं है। हमारा एक ही बात बोलना है कि इफ योर पोजिशनिंग इज करेक्ट, लाइक अ टावर जो हमारे बिल्डिंग्स के ऊपर में लगा रहता है, ऊंचे स्थानों पे लगा रहता है। वाई उसका पोजिशनिंग ऊपर में किया गया है? क्योंकि वो कोई तरह का उसको हर्डल्स ना मिले, वो अपने सिग्नल्स को बकायदा कैच कर पाए और ट्रांजिट कर पाए। बहुत जरूरी है ना कि आपकी पोजिशनिंग एक्यूरेट होनी मांगती है, और हम उसके मास्टर हैं। हम आपको बताएंगे कि क्यों 1 से लेके 9 तक को मूलांक बोला जाता है और 1010 को कॉन्सेप्ट बोला जाता है। मैं बताऊंगा कि 1111 कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ नंबर, और इस नंबर इज नॉट आपका काम में आएगा। अगर आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ है ना, तो आपका ब्राह्मण, आपका पंडित, आपका पतरा निकालते वक्त आपका मूलांक खोजेगा और सभी नंबरों को जोड़ के एक नंबर निकालेगा जो 0 और 9 से बिलोंग करेगा। तो मेन चीज है ना कि ये पूरी दुनिया, चांद का काम है पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाना, पृथ्वी का काम है सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाना, और पिछले कई एक हजारों साल से ये काम होता आ रहा है, ठीक है ना। एक सटीकता पे, एक ज्योमेट्री पे सब कुछ अलाइन है, ठीक है ना। दूसरी बात कि एक निवाला जब आप मुंह में खाते हो तो आप उसको कोई कमांड नहीं देते हो, जाओ इससे ब्लड बन जा, इससे हड्डी स्ट्रांग हो जाना, इससे मेरा पाचन तंत्र मजबूत हो जाना, कुछ भी नहीं करते हो। एक कट भी जाता है ना तो आप दवाई नहीं खाते हो, वो खाना खाने से ही वो कटिंग भी सट जाता है, वो ठीक हो जाता है घाव, ठीक है ना। So this is all an alignment and geometry जो काम कर रहा है। So this proves कि अगर हम alignment and positioning पे चीजों को सेट करते हैं तो it works. So that is the thing. एकदम सिंपल चीज है, लेकिन लोग इसको इतना जटिल और इतना बड़े बड़े बातों से जोड़ दिया है ना। पश्चिमी बातें, A lot of confusion has been पश्चिमी बातें created. आपको सिर्फ डरा रही हैं। डरने का कोई चीज ही नहीं है, डरने का कोई चीज नहीं है, लेकिन लोग को डरा दिया गया है, बड़ी बड़ी बातें बोल के डरा दिया गया। और लोग की भी मजबूरी है ना, लोगों के पास अपनी इतनी ज्यादा व्यस्तता है ना कि लोग चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे। उनको The same thing is intellectual bankruptcy. वो खुद का दिमाग लगाने नहीं चाहते, they are मतलब dependent on कि आप मुझे करके दे दो। Now it's like do it for me, give me the options, do it for me वाला ये। आपको बस एक चीज समझ जाना है इतनी बातों के दौरान कि लोगों को सिर्फ कन्वीनियंस चाहिए, सिर्फ कन्वीनियंस चाहिए। हाउ यू मेक पॉसिबल फॉर देम, बस लोगों को इतना ही मतलब है।
आज एक दुकानदार को ना क्यूआर कोड के बारे में पता है, ना बैंक ट्रांजेक्शन के बारे में पता है, कुछ पता नहीं है, बट उसको पता है कि वो क्यूआर कोड यूज करता है, उसको पता है कि वो व्हाट्सएप यूज करता है, उसको पता है कि वो एफबी यूज करता है, गूगल यूज करता है, वो यूट्यूब देख रहा है। लेकिन उसको उसके पीछे का जो झोल है ना, या फिर उसके पीछे का जो कलाकारी है, उसको कुछ नहीं पता है। तो किसी लग ने रहा है मेरे बताया था को किसी ने बताया था कि अगर हम यूएस क्लाइंट को बोलते हैं कि हम फेसबुक ऐड रन करते हैं, तो यहाँ पे जब अगर इंडिया में किसी को बोलना होता तो बोलते हैं कि जो तुम यूट्यूब में ऐड देखते हो तो हम बनाते हैं। तो उनका कहना का ये है। तो या तो दैट इज मतलब द लेवल ऑफ नॉलेज अभी एंड इंडिया के अंदर में देखो, अगर आप देखा जाए ना, तो एक ऐसा पिरामिड देखो, आप ऐसा पिरामिड देखो तो आपको पता चलेगा कि जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास अभी, यूडेमी और बायजूस और इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं, आप उसको देखो तो पता चलेगा कि इनका टारगेट मार्केट कौन है। अगर ये पिरामिड की बात करो ना, तो इसमें लगभग जो 60% का पार्ट है ना, वो वैसे लोग हैं ना जो मतलब बस 20,000 से हार्डली उनका इनकम है, यानी उनका महीने का इनकम 20 से 30,000 पे जाके रुक जाता है। फिर उसके बाद वाला जो है ना, वो ब्यूरोक्रेट्स और एरिस्टोक्रेट, ये जॉब होल्डर है ना, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी वाले लोग हैं, ठीक है ना। और उसके ऊपर का जो पार्ट है, मतलब मैं बोला यहाँ लगभग 60% का हिस्सा वो है जो 20-30 हजार के अंदर में सीमित है, इवन उससे भी कम। और उसके ऊपर का जो एक मिड लेवल है, ऊपर का 4 से 5% वो है जो क्रीम है। और मेन टारगेट मार्केट वही है, वही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, उसी को हमारी बातें समझ में आएंगी और वही इस बातों को एडमिट करेगा और उस पर काम भी करेगा। लेकिन इसके बाद वाले जो लोग हैं, बीच वाले जो लोग हैं ना, बस वो किसी हाल में नहीं है, वो करेंगे वही 5% या 4% को यहां से उठ के जाएंगे, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ इंटेलेक्चुअल है ना, वो आर बैंकक्रप्ट हो गया है। उसके पास सर्टिफिकेट है ना, बस उसको लगता है कि मैं एक एलएलबी कर लिया, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, बट उसको पता है कि मैं एक एमबीए होल्डर हूँ। और वो ना पकौड़ी छाल सकता है और ना कहीं जॉब कर सकता है, ना कभी बिजनेस कर सकता है, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा, वो एकदम कंफ्यूज हो गया बंदा, एग्जैक्टली। एकदम गड़बड़ हो गया हाल। अब ऐसे में बहुत जरूरी है ना कि लोगों को कोई हाथ पकड़ के नदी पार कराए, रोड पार कराए। अब हमारी जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है सर, हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो बीच का परसेंटेज है ना, जो 35% जो पॉपुलेशन है ना बॉस, वो यार सब कुछ होते हुए भी गरीब है। और ये बात जो है ना, बहुत बड़ा बात है। जिसके पास नहीं है उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। उनको तो सेल्फ डाउट है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या करूंगा, अरे यार अपना तो इतने ही से काम होगा यार, अपना अपने जो हम लोग करना था कर लिया, जो बच्चे लोग करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे मैं उसका भाग भी जाता थोड़ी ना हूं। वो 60% आबादी आज भी बोल रही है, लेकिन 35% आबादी जो है ना बॉस, इसके ऊपर ध्यान देने का बहुत जरूरत है। ये हर चीज को देखते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन अमल नहीं करते। करते हैं उसमें का एक बहुत छोटा आबादी, करीबन 5%, 3% का आबादी है 35% के अंदर का। वो जो उनको लोग बहुत एजुकेट करना पड़ता है, बहुत काफी, क्योंकि वो पढ़े लिखे बेवकूफ है, पढ़े लिखे बेवकूफ है। मेरे दोस्त आज, यू कैन नॉट इमेजिन, मेरे जो दोस्त है उनको भी आज तक ये डिजिटल मार्केटिंग समझ में नहीं आ रहा। नहीं यार, एमबीए दे आर लाइक दिल्ली में है, मुंबई में है, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो बाकी टियर 2 टियर 3 सिटी तो छोड़ दो बात की। They are still thinking that I'm doing some MLM kind of stuff and कुछ स्कैम वगैरह मैं कर रहा हूँ। हाँ, exactly. The youth is actually taking these opportunity वाला stuff को वो scam की तरह ले लेते हैं. That is the main reason कि India क्यों develop नहीं है. This is the main reason. Yes. So that is the thing. बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? We have to change the belief system. और हम लोग को मैं साहू मैं बता रहा हूँ आपको कि यार हम लोग को बहुत बड़ा मतलब जो है ना सबमिट करना होगा, हम लोग को अलाइन करना होगा, सबमिट करना होगा। और 2-4 लोगों को आप जिसको जानते हैं उसको अलाइन कीजिए, और हम लोग 4-6 लोग का एक यूनिट बनाइए जो मल्टीपल ऑफ चेंजेस होता रहेगा। ऐसा नहीं कि 6 लोग आज ये हैं तो 6 लोग दूसरे होंगे, 6 लोग और दूसरे होंगे, ऐसे करके 20, 25, 30 लोगों का यूनिट होगा जो 6-5 करके सबमिट करेंगे हम लोग लगातार। एक ही ऐड का खर्चा होगा और सबमिट में 4 घंटा 5 घंटा का लेक्चर में 45 मिनट 40 मिनट 45 मिनट 40 मिनट करके 5-6 लेक्चर होगा, समझ रहे हो ना? और अभी आपको सिर्फ कोलैब सिस्टम ही काम करेगा, और यही एक पैटर्न है जो एक खर्चा जाएगा, एक ऐड कॉस्ट जाएगा टारगेट मार्केट पे, और वो 5 तरह के एडवाइस उसको मिल जाएंगे, ठीक है ना? यही तरीका बचा है काम करने का। और आपको बहुत, जैसे हम लोग आगे बढ़ के देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एमपी प्रियांक से
बात कर रहे थे, आपको पता है ना, अच्छा, बताई थी ना हाँ बढ़िया। हाँ हाँ, जानते जानता हूँ। ठीक है, तो अभी इसी तरह से हमारा सिलसिला चालू, इससे पहले कोई संदीप बोल के बंदा था, उससे हुआ, आपसे हो गया, ऐसे करके हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी, क्योंकि गूगल अपनी पैसा लेने से छोड़ेगा नहीं, फेसबुक अपना पैसा लेने से छोड़ेगा नहीं, अगर हम ऐड में जाएंगे नहीं तो इस ऑर्गेनिक के चक्कर में जो है ना, आप वो स्केल अप का जो पिलर है ना उसको तोड़ नहीं पाएंगे। 10 लाख लगाइए, 14 लाख आज हो जाएगा, क्लियर कट, मेरे को जो समझ में आता है। अगर आज आप 10 लाख रुपए ऐड में डालो तो आज के दिन में आपका 14 लाख रुपए कन्वर्ट होता है। हाँ, वो तो ठीक है है ही है। ना, सिंपल है, 40% तुरंत कन्वर्ट हो रहा है, इससे अच्छा बात हो नहीं सकता है। तो अगर आप हर दिन का 10 लाख रुपए का टारगेट ले रहे हो तो जाहिर बात है 30 दिन में आपका चला गया लगभग 10 लाख इंटू 30 दिन, ठीक है ना, यानी 30 लाख रुपए चला गया। 30 लाख रुपए में आप 40% कैपिटलाइज कर गए, क्लियर कट मैसेज है। यानी आपके पास 3 चौको 12, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आमदनी होगी। क्लियर कट मैसेज है, एकदम सिंपल है। 3 करोड़ रुपया गया, 1 करोड़ रुपया कमाई हो गया, 3 करोड़ रुपया गया, 1 करोड़, और यही स्केल करा सकता है। और उसके बाद जब एक जन का पॉपुलेशन अवेयर हो जाएंगी ना, तो एक बाढ़ आएगा, फिर धीरे धीरे बाढ़ आएगा, हाँ। एक लहर आएगा। क्रॉस इसके पॉलिनेशन, लिए हाँ। अभी देखिए सक्सेस ज्ञान वाले सिर्फ कर रहे हैं सबमिट, हाँ। और एक जीनी गुरु वाले कर रहे हैं। हम्म। गिनी गुरु और सक्सेस ज्ञान कर रहा है। विवेक बिंद्रा तो इस फील्ड में है ही नहीं, उनको नीश मार्केट में काम ही नहीं करना, वो नीश मार्केट में काम ही नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो तो आई एम पार्ट ऑफ हिज फर्स्ट हाँ, बैच ऑफ, विवेक बिंद्रा साहब जो है नीश मार्केट में काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नीश मार्केट में काम नहीं कर रहे, हम लोग नीश मार्केट में काम कर रहे हैं, हम लोग मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। हमारे साथ बेनिफिट ये है कि हम लोग मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। आप बात को समझ रहे हैं ना? आई नो यस। लेकिन मोनोपोली क्रिएट होगा, लेकिन कैसे होगा? जब लोगों को नजर ही नहीं आएंगे, लोगों का इंपॉर्टेंस समझ में ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना। यूट्यूब पे जाएंगे लोग, डिस्ट्रैक्ट होंगे, ओवरवेलम होंगे, और वो कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे, वहीं पे गाड़ी फंस जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस बातों को जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, तो वीडियो में कन्वर्ट हो ही गया, इसको एडिट करना आपकी अपनी जिम्मेवारी है। मैं आपको, आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगा, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग होगा, जैसे एडिट करना एडिट कीजिए और इसको डालिए। जैसे आप वायरल कर सकते हैं कीजिए, अपने लेवल पे एसईओ कीजिए, जो करना है, और लोगों को कोलैब कीजिए, मीटिंग्स में लाइए, 2 लोग 4 लोग 5 लोग इसी तरह से जूम में आएंगे और बकायदा अपनी अपनी बातें करके एक कन्वर्जेशन सोशल में डालेंगे कि ये करना बहुत जरूरी है, लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, ये करना ही होगा। जैसे मैं ऑथोरिटी में बात कर रहा हूँ ना, वैसे ऑथोरिटी में आके बात करना होगा। जब जब ऑथोरिटी में बात होगी ना, लोग एडमिट करेंगे। लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को हिला के जगाने की जरूरत है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो आप? लोग बेवकूफ नहीं है बॉस, लोगों को सब समझ में आ रहा है, बट उनके पास कोई, ये बोलते हैं ना कि ऊन खरीद के लाते हो आप, तो ऊन खरीद के लाने के बाद आप कांटा पे नहीं चढ़ा सकते हो, उसको पहले गोल गोल करके गोला बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो बस मेहनत तो करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा होगा ना कि पेटीएम, गूगल, फोन पे क्यूआर कोड लेके आया मार्केट में, असली मजा उठाया भारत पे। ठीक है ना, असली मजा उठाया भारत पे। आज उसका एड देखो तो पता चलता है कि सीधा बोल रहा है कि जितने बैंकर थे ना, दे आर नॉनसेंस। उनको पता ही नहीं है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो कितना कॉन्फिडेंट है उनको, कितना कॉन्फिडेंट है कि वो बंदा साफ साफ बोल रहा है 4 दिन पहले आके मार्केट में कि बॉस ये बैंकर्स ऑल आर नॉनसेंस, दे हैवंट आइडिया अबाउट कि यार बैंकिंग अगला स्टेप कहां जा रहा है। बोल सकता है ना, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी को किसी इंप्लॉय की हैसियत से नहीं देख रहा है, एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से देख रहा है। वो इंप्लॉय की हैसियत से नहीं देख रहा, वो एंटरप्रेन्योर की हैसियत से देख रहा है, और वो उसको किसी सीईओ के ताकत में नहीं छोड़ रखा है, वो उसने अपने दम पे देखा है। तो बस जिसके सर पे लंगा तलवार लटकेगा ना, वो करेगा। और हर इंसान भारत का जो है ना, विश्व गुरु का होने का दावा रखता है, बस उसे हिलाने की जगाने की जरूरत है। हनुमान को और अंगद और जामवंत को हिला के, जामवंत ने काम किया था ना, हिला के जगाया था। अरे तू मैं तेरे को हिला के बता रहा हूँ कि तेरे के पास एक ज्ञान है, तेरे को श्राप मिला हुआ है, तेरे को ऐसा आशीर्वाद मिला है कि तेरे को तेरा बुद्धि याद नहीं रहेगा, तेरे को हिला के बता। तो हनुमान जी को ही बताना पड़ा था कि तू उड़ सकता है, तू ये कर सकता है। जामवंत इस चीज को किए थे, हनुमान जी को उनकी ताकत समझ में आई थी, और फिर वो अपने ताकत का इस्तेमाल किए थे। ठीक है ना। और सेम चीज नल और नील के साथ भी हुआ था कि उनको उनकी शरारतों की वजह से उनको स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन उनको बोला गया था कि अगर तुमको कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। बॉस हम भारतीय लोग वही है, वही जामवंत का रिक्वायरमेंट है जो हिला के बताए कि यार तेरे अंदर तो वो सब कुछ है जो तू बाहर खोज रहा है। वो गुफा जो जहां तू जाने से डर रहा है, वो सारा खजाना लिए बैठा है।
वो गुफा जहां तू जाने एग्जैक्टली। से डर रहा है वो सारा खजाना लिए बैठा है, तो तू बाहर मत घूम, तू तेरे अंदर जा। मैं बता रहा हूँ तेरे अंदर जा। तू गुलाब है कि धनिया है कि हल्दी है कि नमक है, तू क्या है ना, तेरे को पता चला मतलब तू करेगा। और तू वैसा करेगा ना जो तेरे संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मेरा तो सीधा दावा है कि जिस पल आप 1 रुपया कमाते हो ना, वही पल है जो आप 100 करोड़ भी कमा सकते हो। और मेरा दूसरा हम्म। दावा है कि आप जो हो ना, वो अकेले, आप जो हो ना वो अकेले इस संसार का 100 ऐसी समस्याओं का समाधान होना जो सिर्फ आप ही दे सकते हो इस संसार को, आपके सिवा कोई दूसरा दे ही नहीं सकता है। मेरा एकदम हम्म। स्ट्रॉन्ग दावा है, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि एक इंसान का थंबप्रिंट और उसका रेटिना इस बात का प्रूफ है कि वो किसी से सिमिलर नहीं है, वो पूरा डिफरेंट है। भगवान ने बहुत मेहनत किया है तेरे को बनाने में भाई, कि इतने 750 करोड़ की आबादी में तुझे वैसा पहचान दिया है, तेरा रेटिना और तेरा थंबप्रिंट जो किसी के साथ मैच नहीं करता है। इसका मतलब यार एक सिग्नल है, आपको सिंबल ही समझ में आना है, सिग्नल ही समझना होगा ना कि यार आप यूनिक हम्म। हो। आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो कौन ही आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपने नजर में हीरो या जीरो होना पड़ता है। आप जो हो ना, दुनिया आपको वैसे ही देखती है। हेलो, आप जो हो एग्जैक्टली। ना, दुनिया आपको वैसे ही देखती है। अब आप मेरे को क्रॉस करो कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। नहीं, हमारे जो दिमाग में जैसे चलता है, जैसे हम जैसे अपने आप को सोचते हैं, तो लोग वही उसी नजरे में ही देखते हैं। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला। Yes, the self-image that we create is the actual reflection एग्जैक्टली। of या। the, that reflects in यस। our outer world. Yes. मेरे को आपको जो बोलना तो सिंपल यही बात है कि आपका जितना भी सोर्सेस है, अभी सबको आपके जिससे भी पहचान है ना, जो हमारे कम्युनिटी के हैं, हाँ हाँ। जिनसे आपका इंट्रोडक्शन है, सभी को आप तुरंत मेल करो। आप तुरंत उसको व्हाट्सएप मैसेज डालो आप, और बोलो कि यार हम लोग एक मीटिंग फाइनल कर रहे हैं, हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे और ये करना है, ये करना ही हम्म। पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है सर। हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ कोलैबोरेशन ही सबसे बड़ा गेम है। हाँ, वो तो है ही है। अब करो, बाकी का जो भी काम हो रहा है ना उसको थोड़ा दिन के लिए थोड़ा 40% 50% पे ले आओ, और इधर 40 60% और 50% इधर ध्यान दे दो। आप लोगों से कोलैब करना शुरू करो, पक्का हम्म। ये काम कर जाएगा बॉस। मैं जो सोचता हूँ ना, बहुत डीप जाके सोचता हूँ, और आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं किस लेवल पे रिसर्च करके बैठा हूँ। मेरा जो आज 40 साल 42 साल का उम्र है, इसमें मैंने मजाक नहीं किया है धूप में बाल सफेद नहीं किया है, एक एक चीजों को बहुत जमा किया हूँ, सो दैट मैंने अपने 12 15 साल के बच्चों को आज यहाँ आपके सामने खड़ा होने का ताकत दिया है। नहीं तो बस इतने टाइम में awesome। ना लोग जाके कोई मोबाइल पे गेम ही खेल रहा होगा। नो डाउट। ठीक है ना। और बच्चे के साथ माँ बाप का जो रिलेशन है उसमें सिर्फ एक ही बात है माँ बाप के पास, मेरे बच्चे मेरी बातें सुनते नहीं है। ठीक है ना। और मैं बता देता हूँ कि वैसा शाहरुख खान बनने से कोई फायदा नहीं है बॉस, कि आप 40 कंपनी का इंडोर्समेंट करो, आप दुबई का ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ और बच्चा को कोई जाके जेल में डाल दे। ऐसा शाहरुख खान नहीं बनना है बॉस। वैसा शाहरुख खान नहीं बनने से प्रणाम है। क्लियर है बॉस, क्लियर है। ऐसा शाहरुख खान नहीं बनना है कि यार मैं तो बहुत बड़ा तोप हो गया और पता चला मेरे बच्चों को ले गया। कोई लेगा। ना ना, बहुत गड़बड़। और आपको मैं बता रहा हूँ आने वाला टाइम का एक और बड़ा खुलासा कर रहा हूं मैं, कि जो कैपेबल होंगे ना वो सारे पेरेंट्स वैसे मेंटर खोजेंगे ना जो उनके बच्चों को अलाइन कर दे। एग्जैक्टली। आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा न्यूज बता रहा हूँ आपको, हम्म। कि पेरेंट्स खोजेंगे कि कोई ऐसा मेंटर है क्या सोसाइटी में जो मेरे बच्चों को अलाइन कर दे, कि मेरा कमाया हुआ पैसा मेरा बच्चा खा पी के उड़ाएगा। बहुत हाँ, सही बात बोला। नहीं, ये बात जितने तो भी सही मेहनती है। लोग हैं ना, जितने भी लोग आज आप दिन रात एक कर रहे हैं ना, अगर वो अपने हम्म। बच्चों पे अपने घर पे ध्यान, देखो सिंपल बात है, योर थॉट वर्ड एंड डीड एक लाइन में लाइन होना चाहिए। सिंपल सा इसको अगर पलट के देखो आज के जमाने में, तो आपका दुनिया कौन है? आप, आपका परिवार है। आपका दुनिया कौन है? आपका परिवार एज वेल एज आपका व्यापार और आपका आसपास पड़ोस, इतने ही से आपकी दुनिया है। और आप कभी भी बहुत ज्यादा नहीं सोचते हो। आप जो सोचते हो ना, अपने लेवल से एक लेवल ऊपर का सोचते हो। आप आज जो भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, व्हाटएवर, आप अपने लेवल का एक दो लेवल ही ऊपर सोच रहे हो, क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं है कि आप बियॉन्ड 1000 लेवल ऊपर, 10,000 लेवल। अभी मैं ऐसे बोला ना कि आप 10 लाख रुपए की आपकी आवती है, अभी आप मेरे को बताओ कि कितने टाइम में 100 करोड़ रुपए आपके पास होगा, तो आप बोले यार अभी तो सोचा ही नहीं इस बारे में। तो गैप वहां पर है, गैप वहां पर है। आप कुछ इलॉन मस्क बनना चाहते हो, आप कुछ जेफ बेजोस बनना चाहते हो, आप कुछ नरेंद्र मोदी बनना चाहते हो, आप कुछ संदीप बनना चाहते हो, आप कुछ सिद्धार्थ राजशेखर बनना चाहते हो, आप कुछ अपने आप का बनना ही नहीं चाहते हो।
सागर संगम साहू मैं हूं और सागर संगम साहू ही इनफ है, इस बात को बोलने से आपको डर लगता है। मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप किसी चीज को इमिटेट करना चाहते हो यार, आप अपना इकोसिस्टम पे आपका बिलीव ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत जरूरी है बॉस। मेन चीज पे कांटा नहीं फंसेगा ना तो गैप रह जाएगा। एग्जैक्टली गैप रह जाएगा। जब तक गैप रहेगा ना वाइब्रेशन होता रहेगा, आप वो बात कर ही नहीं पाओगे एग्जैक्टली जो करना है आपको। तो हमारा आपको पता चल गया होगा कि मैं किस लेवल पे पोटेंशियल रखता हूं, और मेरे साथ अगर कोई भी आदमी मेरी बातें सुना और मेरे बताए हुए स्ट्रक्चर को फॉलो किया, मतलब वो जो भी टाइम अपने लिए बांधा है ना, उस टाइम से हाफ टाइम भी नहीं लगेगा। बोलने वाले ने ठीक कहा है कि जो काम आप 1 साल में सोच रहे हो ना, वो 1 महीने में भी हो सकता है, और जो काम आप 1 महीने में सोच रहे हो वो 1 सप्ते में भी हो सकता है, और जो काम आप 1 सप्ते में सोच रहे हो वो 1 दिन में भी हो सकता है, और आपने जिस काम को 1 दिन के लिए सोचा वो 5 घंटे में भी हो सकता है, और जो काम को आपने 5 घंटे में सोचा वो 1 घंटे में भी हो सकता है। तो ये बोलने वाले ने बेवकूफ नहीं है, ये बातें बहुत पुरानी है, लेकिन आपके पास वो जो है ना, बोलते हैं ना, अंदर से वो है ही नहीं। आप हिल रहे हो, डर रहे हो। जब तक गैप रहेगा तब तक आप हिलते रहोगे, और ये नुकसान है बॉस। और अपना एक ही काम है, वो गैप को फिल कर देना। मैंने जो रिसर्च किया है ना, एकदम ऐसी एग्जांपल्स दूंगा ना, ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये ठीक गैप को फिल कर दिया, और आप स्ट्रांग हो जाओगे। आपका एक कहावत हम लोग बोलते हैं, यू आर इल बिकॉज यू हैवंट आइडिया हाउ टू रिमेन स्टिल। आपको हिलने का बीमारी लग गया है, यू आर सेकिंग ऑलवेज। जब तक हिलोगे ना तब तक वो कभी नहीं मजा आएगा जो मजा आना चाहिए। यू हैवंट द आइडिया, यू डजंट हैव द कैलिबर हाउ टू रिमेन स्टिल, दैट्स व्हाई यू आर इल। इसको खाली खत्म कर दो, काम खत्म है। क्योंकि कंपटीशन करने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो कोलैबोरेशन से ही हो सकता है। लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली या आपको पता चल गया कि मेरा सुवरदान हवा में सुवरदान नहीं है, मैंने एग्जैक्टली सुवरदान जैसा चीज पे काम कर लिया है, ठीक है ना। तो आपको फील होगा आज रात में, आप अगर मेरी बातों को रिकॉल करेंगे, इस वीडियो को वापस देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज ना विजुअलाइज होगी, और वो आपके बहुत सारा स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला है। हाँ हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मैं ड्राइव का लिंक दे दूंगा ना। हाँ, तो गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मैं आप लोग की फैमिली का मेंबर बनना चाहता हूं, एंड आई विल बी ज्वाइनिंग यू वेरी सून, एंड थैंक यू वेरी मच। आई विल बी प्रमोटिंग दिस लाइक एनीथिंग। मैं इसको प्रमोट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अनूप मिंज, रांची, झारखंड से, थैंक यू वेरी मच। सुपर्ब कंटेंट, सुपर्ब, मतलब इसकी 80,000 भी लीजिए ना, और लाख रुपया भी अगर ली जाए तो वो भी कम है मेरे ख्याल से। आई एम सो मच सुपर एक्साइटेड। दोस्तों नमस्कार, जोहार। अभी मैंने नवीन सर का ये यू आर द ब्रांड वाला कोर्स किया अभी 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, एंड इट वॉज माइंड ब्लोइंग। मेरे को लगता है कि इस प्रकार का सेशन मैंने कभी भी अभी तक अटेंड किया नहीं था। मतलब जितने भी स्पीकर्स का मैंने अटेंड किया, ही वॉज वेरी नेचुरल एंड ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक और बहुत एनर्जेटिक, एंड ही शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स की बहुत नेचुरल तरीके से उन्होंने शेयर किया। और मैं तो खुश हूँ वरदान बिटिया के ऊपर में कि मेरा बेटा भी जो है वो भी 12 साल का है, और बेटी 13 साल की है। एंड वो तो बिटिया जो है वो हमारी अम्मा निकली। उन्होंने इतना कुछ सिखाया कि लगता है कि अभी तक जो हमने सीखा है वो तो कुछ सीखा ही नहीं। तो कुछ नया स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, कुछ नया अनलर्न करने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ों को रीलर्न करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर तो मैं बोलूँगा कि जो हमने सीखा है आज तक, अगर इतना ही हमें हिम्मत होती और इतना ही नॉलेज होता तो शायद हम लोग आज तक कुछ बड़ा कर लिए होते। तो चूँकि नई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, और नया चीज़ें, जो दुनिया बदल रही है, ट्रैफिक जहाँ है वहीं जाना है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताया जो मैंने डायरी में नोट डाउन किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ज्वाइन करूँगा इस कम्युनिटी को, शुभ वरदान कम्युनिटी को। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट नवीन सर, कि नवीन सर ने जो प्लेटफॉर्म दिया ना, वो बहुत लाजवाब है और ज़िंदगी बदल देने वाला है दोस्तों। एंड दिस इज़ द मिलियनेयर मेकिंग कंसेप्ट। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड वेरी मच थैंकफुल, एंड थैंक्स नवीन सर, थैंक्स वरदान, थैंक्स शुभ, और पूरी फैमिली को। मैं आप लोग की फैमिली का मेंबर बनना चाहता हूँ, एंड आई विल बी ज्वाइनिंग यू वेरी सून, एंड थैंक यू वेरी मच। आई विल बी प्रमोटिंग दिस लाइक एनीथिंग। मैं इसको प्रमोट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अनूप मिंज, रांची, झारखंड से, थैंक यू वेरी मच। सुपर्ब कंटेंट, सुपर्ब, मतलब इसकी 80,000 भी लीजिए ना, और लाख रुपया भी अगर ली जाए तो वो भी कम है मेरे ख्याल से। आई एम सो मच सुपर एक्साइटेड, बट आई एम सिंस बिजी विद सम प्रोजेक्ट, आई विल बी ज्वाइनिंग यू वेरी सून, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर एंडीवर। थैंक यू वेरी मच।